So next characteristic feature on which we are just classifying the porifera, so that is its digestive system. What type of the digestive system it is having? So the as it is multicellular organism, तो multicellular organism है, तो digestive system तो as such it is absent, तो digestive system is absent. But ingestion means intake of food, is intracellular. Intracellular means within the cell, intracellular, या हम कहें कि ingestion as well as digestion is intracellular. Intracellular means within the cell, or you can say कि they show holozoic mode of nutrition. They shows holozoic mode of nutrition. Okay, next the very important characteristic feature that is having, so before that we first do all the things. Next is the respiration. तो देयर इज नो सच, क्योंकि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गन सिस्टम होने ही नहीं है बेटा. तो रेस्पिरेशन अकर बाय, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बाय जनरल बॉडी सरफेस. जनरल बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन हो जाता है बेटा, ठीक है. दैट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन. नेक्स्ट थिंग, एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन ऑल्सो, एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ metabolic, this is M, metabolic waste, and the metabolic waste is also removed by simple diffusion. अमोनिया बेटा सिंपली वाटर में डिफ्यूज आउट हो जाती है इसके अंदर, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इनके अंदर एक्सक्रीशन भी सिंपल अमोनोटेलिक है, यानी अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो दीज एनिमल आर अमोनोटेलिक. ओके, अमोनोटेलिक मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट. दीज आर जर्नल कैरेक्टरिस्टिक. ये सारी क्या है? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक. नाउ वी कम ऑन टू द next characteristic that is called as unique characteristic. Unique characteristics का meaning हुआ कि the characteristic which are present only in this phylum. So that is, we will talk about the unique characteristic. यानी कि क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो केवल इसी फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में मिलती है, बाकी फाइलम में नहीं मिलती. तो सबसे फर्स्ट जो होता है दैट इज द कैनाल सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज कैनाल सिस्टम? तो एक्चुअली स्पॉन्जेस में हैव वाटर ट्रांसपोर्ट. इनके अंदर बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? बाय कैनाल सिस्टम. ओके, और वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होगा कैनाल सिस्टम में, और कैनाल सिस्टम्स के पास क्या होते हैं बेटा? बहुत माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट, और ये जो माइन्यूट पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑस्टिया. क्या कहलाते हैं? ऑस्टिया. OSTIA, ऑस्टिया.
अब सिंपली ऑस्टिया किस में ओपन होते हैं? ऑस्टिया ओपन्स इनटू अ सेंट्रल कैविटी, मैं सिंपलेस्ट की बात कर रही हूँ, सेंट्रल कैविटी कॉल्ड ऑस्क्यूलम। क्या कहलाता है बेटा? ऑस्क्यूलम, उसमें ओपन होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, और ऑस्क्यूलम जो होता है बेटा दैट इज ओपन इनटू नहीं सॉरी opens into a central cavity called as spongiocele. And spongiocele opens out. Okay, this is open into spongiocele. Spongioceles open out into the osculum. तो osculum हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल अपर्चर है, अ सिंपल अपर्चर। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो सिंपली सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम आई एम जस्ट ड्रॉइंग। I am just drawing a Sicon. Sicon type of canal system is considered to be the simplest type of canal system. Okay, there are various type of canal system जिसके अंदर हम कहते हैं Sicon, Ascon and Leucon. 3 type of canal system is there, and out of that the Sicon is the simplest one. So these are the pores. These pores are called as ostia. Ostia open into a central cavity and which is called as spongiocele. क्या कहलाती है central cavity? Spongiocele. And spongiocele opens out through a aperture and this is called as osculum. ओके बच्चा, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो सिंपली हम कहते हैं कि कैनाल सिस्टम कितने टाइप की हैं? तो देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। नाउ out of these 3 main type of canal system, the simplest one you can say first is the Sicon type, which is the simplest one. Example is the Sicon. Sicon is the name of the organism. उसी के ही नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर ही उस कैनाल सिस्टम का नाम रखा गया है। सेकेंड इज द Ascon type. Ascon type is the second complex. Example is the Leucosolenia. Leucosolenia. Okay, that is the second Ascon type. And third is the Leucon type. और ल्यूकॉन टाइप में एग्जाम्पल आता है बेटा स्पॉन्जिला। So that is various type of canal system is there, but we have to study only about the simplest canal system, that is the Sicon type of canal system. अब ये canal system का काम क्या है बेटा? तो what is its function? तो simply अगर हम देखें तो canal system क्या provide कर रहा है? Canal system provide first तो बेटा pathway, रास्ता प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और यही वाटर से अल्टीमेटली क्या होता है बेटा? हमने कहा था रेस्पिरेशन बाय द सिंपल डिफ्यूजन, है ना। एक्सक्रीशन इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो हेयर द वाटर responsible for the respiration, excretion as well as for gathering of the food. तो वो कैनाल सिस्टम उसको पाथ प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया बेटा कैनाल सिस्टम। अब जो कैनाल सिस्टम होती है तो ये जो स्पॉन्जोसील है, दिस स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय अ स्पेशल सेल। तो सेकेंड फीचर इज द स्पॉन्जोसील is lined by a special cell called कॉइनोसाइट्स। क्या कहलाती हैं बेटा? कॉइनोसाइट्स। तो दिस कॉइनोसाइट्स जो हैं बेटा, इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है कॉलर सेल्स। क्या होता है बेटा? कॉलर सेल्स। और ये कॉलर सेल्स जो होती हैं दे लाइंस द स्पॉन्जोसेल, पूरे यहाँ पर ये कॉलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लाइक दिस, फुल कॉलर सेल्स आर देयर, इस तरह से। They line the cavity of the spongiosele and they are mainly responsible for the intracellular digestion, यानी for the intake of the food. Next आता है थर्ड पॉइंट इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक में, that is इसका skeleton। तो the body have एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होता है विच आर मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स। किसके बने हुए बेटा? स्पिक्यूल्स, या फिर जिन्हें कहा जाता है स्पॉन्जिन। ठीक है, तो ये जो स्पॉन्जिन्स हैं ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं, या स्पिक्यूल्स इन्हें सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा फोर्थ, सेक्सेस। तो here the male and female जो होते हैं आर मेल एंड फीमेल गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम ऑर्गेनिज्म, यानी देयर इज नो मेल एंड फीमेल। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा हर्माफ्रोडाइट। What it is word? Hermaphrodite. It means sexes are not separated. Means male gamete भी वही organism बनाएगा, female gamete is also produced by the same individual. That is male gamete and female gamete produced by सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, अब आता है बेटा रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट फिफ्थ, द पोरिफेरा कैन रिप्रोड्यूस बाय द asexual मेथड ऑल्सो एज वेल एज दे कैन रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मेथड ऑल्सो। तो पहला तो सिंपली हम लेते हैं बेटा एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड में सबसे सिंपलेस्ट मेथड है बेटा फ्रेगमेंटेशन। इफ द स्पॉन्ज मीन्स द पोरिफेरा ब्रेक डाउन, ईच पार्ट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो दैट इज कॉल्ड एज द asexual, that is by the fragmentation. Now if we will just see कि that is asexual के अंदर by the formation of gamete, है ना? नहीं सॉरी, सेक्सुअल के अंदर हम लोग बनाते हैं गैमेट फॉर्मेशन। तो सेकंड जो आता है दैट इज बाय द सेक्सुअल मेथड। तो सेक्सुअल मेथड में मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड, मेल गैमेट and female gametes are formed. Then the fusion of gametes takes place that results into zygote formation, and this process is called as fertilization, है ना?
अब बेटा यहाँ पे हमने कहा था जब टर्मिनोलॉजी करी थी कि फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप, इट कैन बी द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इट कैन बी द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो इन स्पॉन्जेस द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है बेटा? इंटरनल हो रहा है. इंटरनल मतलब द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या फीमेल की बॉडी में डेवलप और फर्टिलाइजेशन हो रहा है. नेक्स्ट वी कम ऑन टू द डेवलपमेंट कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा है. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मीन्स लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट. तो इनके अंदर भी लार्वल स्टेज क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट और डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट. एडल्ट से कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं. तो ये बेटा इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए. एग्जाम्पल्स अगर हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट इज द साइकॉन, जिसको हम स्काइफा भी कहते हैं. सेकेंड इज द स्पॉन्जिला. Spongilla is also called as fresh water sponge. Next is the Euspongia, that is also called as bath sponge. So these are the certain characteristic feature of the phylum Porifera. और Porifera का सबसे important feature क्या है बेटा? कैनाल सिस्टम. एंड कैनाल सिस्टम के बेसिस पर ही इसका नाम रखा गया है पॉरीफेरा. थैंक यू.